Good afternoon, students of the BSc third year classes. In the zoology subject, today's topic is related to the ecosystem and their name is that to the trophic levels. In the trophic level, which are concerned to the nourishment of the food chain in the ecosystem, which means that to the each and every layers which obtain to their food materials and representing to the pyramids. So that in the previous lecture you are just I was mentioned that about to the food chain. In the food chain is the defined as the a group of the organism which transfer of the food energy repeated eating and being eaten, which it means that to the each and every tires which feed to their food. In other words, that to the producer which are formed to their food material through the solar energy that's converted into the chemical energy through the process of the photosynthesis that is feeding by the primary consumers that is called to the herbivores, and then the herbivores which takes in the form of the food by the secondary, and then tertiary consumers is so on. In another aspect, that to the maintain all the maintenance and the retain to the aliveness of the ecosystem, proceedings of the ecosystem in the continuous manner, so that this is the importance for that to the flow of energy is going in each and every steps or the layers or the tires in the form of the circulation of the materials and to the flow of energy which organism takes to the food material in the other words, that is the flow of energy is going on to the next level. So flow of energy is essential mandatory to the representing of the alive ecosystem. So today's topic is very important for that to the different kinds of the ecosystem, where are the which kinds of the nourishment level is found, so that first of all we know that what about to the trophic levels. Trophic levels is the each successive level of nourishment of a food chain in an ecosystem is known as trophic level. Here representing to the what about to the trophic level, each successive level of the nourishment of the food chain in an ecosystem is known as trophic level. Meaning of the trophic level means that to the
means that to the nourishment which are going in the food chain, which consists of to the numbers of the tires or the labels, so that is the indicating each successive level, which means that to the tires from to the producers to tertiary consumer. There are the 4 tires or the labels is found to make to the successive level, which are indicating that here each successive level. For that nourishment which goes to the in the food chain, that's found into the ecosystem into the appropriate and convenient manner. So here to the definition of to the trophic labels. In the trophic labels, that is earlier to mention that about to the there are the 4 types of the tires or the labels is found which are started from to the producers to the tertiary consumer, which means that to the 4 producers is the first tire, second is the primary consumer, third is the secondary consumer, fourth is the tertiary consumer. So that there are the 4 tires which in such type of the relationship in between which is started from to the producers to the primary tertiary consumer, which indicating in the food chain, that is by the graphical representation, so that this such type of the relationship which are shown by to the graphics, that is called to the ecological pyramid, which called to the ecological pyramids, and that's ecological pyramids which have to the triangular in shape, triangular structure, triangular pyramids, which mean ecological pyramid which are found into the formation of the trophic level, because they are started from to the producers to the ending of the tertiary consumers, so that to the on the basis of their numbers to the weight and to the flow of energy, so that is if the takes to the example to the base which form to the base by the producers and to the apex to the tertiary consumer in comparison to the at least in number, so that to the form to the ecological pyramid, that is the this kinds of manner which form to the pyramids. This is the triangular in shape. Why are triangular in shape? To the primary consumer, producers, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer. Why are formed to the triangular shape? That's why because the number of the producer is the more in comparison to the primary consumer, secondary consumer, or the tertiary consumer, because the further and further at least lesser in number, the number of the primary, secondary and tertiary consumer is decreasing in comparison to the producers which are formed to the base, that is a more abundant in number. So that is the tertiary consumer is the at least number or the lesser in number, so formed to the apex, and private producer is the base, so he is the, so that you are better known that to the why are forming to the triangular shape, or the what is the base of to the ecological pyramid or triangular structure or the triangular pyramids which found into the trophic levels. So there are the 3 types of to the maybe of 3 types of to the pyramids is found. There are the 3 kinds of the pyramids is found. First is pyramids of number, pyramids of biomass, and third is and last pyramids of energy. There are 3
तो आज के चैप्टर में जो रिलेटेड है ट्रॉपिक लेवल से, जो इकोसिस्टम के अंतर्गत रिप्रेजेंट होता है, तो ये नरिशमेंट को, प्रत्येक जो टायर्स होते हैं उस पे नरिशमेंट के लेवल को, जो फूड चेन का जो नरिशमेंट लेवल होता है इकोसिस्टम में, उसको रिप्रेजेंट करता है। उसके अंतर्गत हमने बताया कि ये ट्रायंगुलर जो त्रिभुजाकार स्ट्रक्चर होता है उसको प्रदर्शित करता है। ये इसका आधार मैंने बताया कि जो अबेंडेंट, अधिकता में जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो उत्पादक होते हैं, जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो होते हैं, उनका नंबर बहुत ज़्यादा होता है और उनका कंपेरिजन करेंगे तो टॉप पे जाएंगे, अपेक्स पे जाएंगे तो जो टर्सरी कंज्यूमर होता है उनकी अपेक्षा बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए ये बेस को फॉर्म करते हैं और लगातार इसी सीक्वेंस में प्राइमरी, सेकेंडरी, देन टर्सरी कंज्यूमर पे जाते जाते इनकी संख्या लगातार कम होती चली जाती है और ये वहाँ पे जैसे कह सकते हैं सिकुड़ते चले जाते हैं और ट्रायंगुलर फॉर्म में ये बनाते चले जाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने कहा कि ईच सक्सेसिव लेवल पे जो नरिशमेंट का स्तर है, पोषण का स्तर है, वो फूड चेन में पाया जाता है, उसको हम ट्रॉपिक लेवल बोलते हैं। और जो कि ग्राफिक्स के माध्यम से हम उसको त्रिभुजाकार फॉर्म में देखते हैं, ट्रायंगुलर शेप में देखते हैं। तो उसके बिहाफ पे हम ये कह सकते हैं कि इकोसिस्टम में जो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, जो कि इकोलॉजिकल पिरामिड के माध्यम से दिखाए जाते हैं, वो 3 प्रकार, मे बी ऑफ 3 टाइप्स ऑफ pyramids which are found, that's related to the number, biomass and energy representation. So that goes now to the new first is pyramids of number. तो सबसे पहले हम पिरामिड्स ऑफ नंबर को देखते हैं। पहला कि ये क्या होता है। पिरामिड्स ऑफ नंबर का मतलब होता है कि जैसा कि यहाँ पे इंडिकेट ही किया गया है नंबर्स, तो इट इज़ अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट ऑर्गेनिज्म इन द फूड चैन so that numbers of the, it represented to the numerical relationship between the different trophic levels. different trophic levels में जो न्यूमेरिकल रिलेशनशिप होता है, न्यूमेरिकल रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। इट इज रिप्रेजेंटेड टू द न्यूमेरिकल रिलेशनशिप इन द डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स ऑफ द फूड चैन। फूड चैन में जितने भी ट्रॉपिक लेवल्स हैं उनके बीच में क्या करता है, न्यूमेरिकल मतलब न्यूमेरिकल रूप से उनके बीच में संबंध को प्रदर्शित करता है, जैसा मैंने पहले बता चुके हैं। अब इसको हम देखते हैं एज एग्जांपल। वी आर जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट टू द थ्रू द एग्जांपल्स। वी नो दैट वेरी वेल अबाउट टू द डिफरेंट इकोसिस्टम्स विच फाउंड इन टू द नेचर, दैट्स टू द हैव टू द different producers and the consumers, so that we just takes to the example to the terrestrial and to the aquatic. First of all, some of the examples are the terrestrial and the aquatic and to the some of the others as well. So we just try to understand through the examples for that to the numerical representation. तो क्यों अब हम समझते हैं कि इनका ट्रायंगुलर शेप कैसे बनता है और न्यूमेरिकल रिलेशनशिप को ये कैसे प्रदर्शित करते हैं। व्हाट इज द प्रोसेस इज गोइंग ऑन टू द फॉर्मेशन ऑफ टू द सो टू द रिलेशनशिप ऑफ टू द ट्रॉपिक लेवल्स। तो देखिए, तो सबसे पहले मैंने कहा जो अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम की, ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात करेंगे, कुछ अलग अलग सिस्टम की बात करेंगे हम। तो सबसे पहले हमने लिया ग्रासलैंड इकोसिस्टम, जो कि आप जानते हैं कि टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आता है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम के अंतर्गत पाया जाने वाला ये ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, जो नाम से ही पता चल रहा है, दिस इज़ द ग्रासलैंड। तो ये इसका जो परिक्षेत्र होगा वो ग्रास होगा और उस पे डिपेंड होने वाले जो हर्बिवोरस होंगे और कार्निवोरस होंगे वो आते हैं। तो हर्बिवोरस जो फीडअप करेगा ग्रासेस को और हर्बिवोरस को फीडअप करने वाले जो कार्निवोरस मेंबर्स होंगे वो पाए जाएंगे। तो हम ग्रासलैंड के इकोसिस्टम में देखते हैं तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम में हमेशा पाएंगे ग्रासेस एबंडेंट अमाउंट में पाई जाती हैं, जबकि उस पर डिपेंड होने वाले जैसे ग्रासहोपर की बात करें, टिड्डे की बात करें तो वो उसको फीडअप करते हैं, उनसे कम उनकी मात्रा होती है और संख्या होती है सॉरी। और उसके ऊपर जब हम जाएंगे तो जैसे अगर फ्रॉग है तो फ्रॉग उससे कम हो जाएंगे। और उसके बाद स्नैक या हॉक्स की बात करेंगे तो इस लगातार सीक्वेंस में ये एक दूसरे से रिलेटेड है, इनका रिलेशनशिप है। तो
ये जो रिलेशनशिप है, दिस इज द टाइप ऑफ द रिलेशनशिप विच मैनिफेस्टेड बाय टू द पिरामिड्स ऑफ द नंबर, विच मीन दैट टू द विच बेस फॉर्म बाय द base forms through the producers which abundant in number, and that is the goes to the in the apex to the decreasing in manner, because that is the lesser in number, and which tertiary consumer which found into the apex is the at least in number. तो पहले ग्रासलैंड में देखते हैं सबसे पहले किस प्रकार से है। तो देखिए इस प्रकार से अगर हम यहाँ पे बॉक्स को बनाए जो कि पिरामिड्स को अभी रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहला जो बॉक्स हमने बनाया ये प्रोड्यूसर्स के लिए है। जो प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूसर्स अब ये अबेंडेंट नंबर में होते हैं, तो इसलिए ये बेस को फॉर्म कर रहे हैं, फाउंडेशन कर रहे हैं। और उसके ऊपर हम जानते हैं, अब अगर हम जैसे हमने कहा कि ग्रासेस हो गई, ग्रास हो गया, ग्रासोपर्स हो गई, ग्रासोपर्स, फ्रॉग हो गया, स्नैक और क्या हो गया, अगर हॉक्स की बात करें टॉप का क्वार्टरनी अगर आएगा तो ठीक है। तो इस प्रकार का ग्रासलैंड में तो प्रोड्यूसर्स जो है ग्रासेस हो गई। अब इसके ऊपर हम जाएंगे तो ये देखिए इस प्रकार से रिडक्शन की प्रक्रिया होगी, रिड्यूस करेंगे टायर्स। क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर से जो ग्रासोपर जो फीडअप करते हैं हर्बीवोरस फॉर्म में होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर के रूप में ग्रासोपर की बात करेंगे। ये ग्रासेस हो गई, ये ग्रासोपर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर है जो इसको हर्बीवोरस बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए हर्बीवोरस होते हैं। तो अब लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर को फीडअप करने वाले उससे कम हो जाएंगे, तो इसलिए टायर्स की संख्या देखिए इसमें कम हो गई। तो ये सेकेंडरी कंज्यूमर है। अगर हम फ्रॉग की बात करें तो ये क्या है, कार्निवोरस है, कार्निवोरस। और हम इसको इस पे टॉप पे जाएंगे तो देखिए ये एटलीस्ट नंबर में होगा टर्सरी कंज्यूमर। ये भी ये अगर स्नैक की बात करें हम तो ये भी कार्निवोरस होता है। तो देखें किस प्रकार से टायर्स लगातार विच आर गोज टू द इन द अपेक्स इन द डिक्रीजिंग इन नंबर। अब देखें अगर इस प्रकार से हम इस फॉर्म करें तो बेस को बनाएं तो देखिए ट्रायंगुलर शेप फॉर्म हो रहा है। क्यों फॉर्म हो रहा है? क्योंकि लगातार जो है इस क्रम में ये जो है कम होते चले जा रहे हैं। और इस एक टायर्स जो होता है जो कि प्रोड्यूसर्स के फॉर्म से शुरू होके टर्सरी कंज्यूमर तक खत्म हो रहा है, वो एटलीस्ट नंबर में होता जा रहा है, लेसर इन नंबर इन कंपेरिजन टू द प्रोड्यूसर, बिकॉज दिस द प्रोड्यूसर इज द अमॉर्डेंट नंबर इन टू द ग्रासलैंड इकोसिस्टम, एंड दैट इज फीडिंग बाय टू द ग्रासहोपर्स, दैट इज द ग्रासोपर इज फीडिंग एज अ हर्बीवोरस बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर इज द फ्रॉग, दैट इज अ कार्निवोरस एज वेल, एंड दैट इज अ टर्सरी कंज्यूमर आल्सो कार्निवोरस which feed to the frogs and form to the kinds of the triangular shape triangular pyramids through the grassland ecosystem। अगर हम दूसरे की बात करें, एक पैरासाइट इकोसिस्टम जो पैरासाइट्स पाए जाते हैं वहाँ पे, हाँ अब हम यहाँ पे आपको बताते चलें तो देखें ये सीधे लगातार क्रम में ये एक दूसरे से रिलेशनशिप नंबर्स के आधार पे, चूँकि ये ग्रेटर अमाउंट में है, अबंडेंट अमाउंट में है और ये लगातार क्रम कम होता चला जा रहा है, तो ये इस क्रम में चले जा रहे हैं, तो इस सीधी रेखा में जा रहे हैं, तो इसको हमेशा अपराइट बोलते हैं। मतलब यहाँ पर नंबर में अगर हम ग्रासलैंड इकोसिस्टम का जो पिरामिड्स देखेंगे तो वो हमेशा किस फॉर्म में होगा? अपराइट फॉर्म में होगा। लेकिन अगर न्यूमेरिकल रिलेशनशिप के अंतर्गत हम देखें पैरासाइट्स को, पैरासिटिक जो इकोसिस्टम है उसके अंतर्गत हम देखने का प्रयास करें तो देखिए किस प्रकार से होता है, वो शेप कैसे बनेगा, किस प्रकार से बनेगा उसको हम थोड़ा देख लेते हैं, जिसके आधार पे हम ये प्रयास करेंगे कि जो है हम थोड़ा सा देखते हैं पैरासिटिक फॉर्म में। तो पैरासिटिक फॉर्म में अगर हम प्रयास करें ट्रायंगुलर शेप बनाने की तो देखिए उल्टा बनेगा। उल्टा क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर पैरासाइट्स में जो प्रोड्यूसर्स होता है वो ट्री होता है, मतलब प्लांट होगा, वो ट्रीज होगा और उसका नंबर एक एटलीस्ट होगा। उस पर डिपेंड होने वाले अगर जो एबीज हैं, बर्ड्स हैं, वो होते हैं सेकंड। अब उस पर डिपेंड होने वाले पैरासाइट्स होते हैं बहुत सारे अबंडेंट नंबर में, दैट इज अबंडेंट नंबर्स ऑफ द पैरासाइट्स विच फाउंड
तो यहाँ पे देखें प्रोड्यूसर्स जो कि एटलिस्ट नंबर में हो गया, उस पर डिपेंड होने वाले जो बर्ड्स होती हैं, सीड्स होती हैं, और उस पर पैरासाइट के फॉर्म में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो एबंडेंट अमाउंट में है। तो इसलिए इनका जो शेप होगा, इकोलॉजिकल पिरामिड्स तो बना रहे हैं लेकिन ये इन्वर्टेड उल्टा बनाएंगे। तो उल्टा को बोलते हैं यहाँ की भाषा में इन्वर्टेड है, और वो जबकि क्या था, अपराइट था। देखिए ये इस तरीके से बना है। इन दोनों में देखिए ये आप ध्यान रखें। लेकिन अगर हम पॉन्ड्स इकोसिस्टम की बात करेंगे तो पॉन्ड्स इकोसिस्टम में आप देखेंगे कि वो भी ये न्यूमेरिकल, अभी केवल न्यूमेरिकल चल रहा है, पिरामिड्स ऑफ नंबर्स के अंतर्गत न्यूमेरिकल जो रिलेशनशिप है उसमें पॉन्ड्स में भी इसी प्रकार से होगा। जैसे प्रोड्यूसर्स उसमें फाइटोप्लैंक्टन जो एल्गीज होती हैं, फ्लोटिंग एल्गीज, सबमर्ज्ड एल्गीज, और जो पूरी एल्गीज पाई जाती हैं फाइटोप्लैंक्टन होते हैं वो होते हैं। फिर उस पर डिपेंड जो जूप्लैंक्टन, बेंथोस एंड नेक्टॉन होती हैं वो होती हैं सेकेंड लेवल पे, जो उसको फीडअप करती हैं। फिर स्मॉल फिशेस एंड देन लार्ज फिशेस। तो लगातार जो संख्या न्यूमेरिकल रिलेशनशिप का जो आधार है वो जो एल्गीज है वो एबंडेंट नंबर में है, फाइटोप्लैंक्टन, फिर जूप्लैंक्टन है, बेंथोस, नेक्टॉन है, फिर जो है स्मॉल फिशेस हैं, देन लार्ज फिशेस हैं। तो वो भी पॉन्ड्स इकोसिस्टम में जो न्यूमेरिकल रिलेशनशिप दिखाया जाएगा वो भी अपराइट कंडीशन में होगा। तो इस प्रकार से आप देखेंगे। अब जबकि इस कंडीशन में आपने न्यूमेरिकल रिलेशनशिप को देख लिया, अगर हम आगे बढ़ें तो आगे आएगा पिरामिड्स ऑफ बायोमास की हम बात करेंगे। बायोमास के अंतर्गत हम देखेंगे कि इसमें किस प्रकार के टायर्स का फॉर्मेशन होगा, इकोलॉजिकल पिरामिड्स का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि इसका जो रिलेशनशिप होगा वो इसके बायोमास के आधार पे होगा। जो भी इंडिविजुअल होंगे वो बायोमास के आधार पे होगा। तो यहाँ पे हम बात करेंगे पिरामिड्स ऑफ बायोमास की, तो यहाँ पे आएगा इट रिप्रेजेंट्स टू द लिविंग weight of individual living weight of the organism of the food chain at any levels at any time in an ecosystem। लिविंग वेट की बात करते हैं। अब वो तो नंबर्स के आधार पर रिप्रेजेंटेशन था, न्यूमेरिकल रिलेशनशिप था, यहाँ पे लिविंग वेट को रिप्रेजेंट करता है। जो इकोसिस्टम्स हैं, जो इकोसिस्टम के अंदर फूड चेन है उसमें जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके जो लिविंग जो उनका वेट होता है वो किसी भी टाइम में वो काउंट किया जाता है और उसके आधार पे यहाँ पे पिरामिड्स का फॉर्मेशन किया जाता है। यहाँ पे देखते हैं तो किस प्रकार का यहाँ पे फॉर्मेशन किया जाएगा उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं कि बायोमास, अब अगर हम ग्रासलैंड की बात करें तो आप देखेंगे ग्रासलैंड में चूँकि ग्रासेस संख्या में ज़्यादा होती हैं और उस पर डिपेंड होने वाले जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एटलीस्ट नंबर में होते चले जाते हैं, तो वो अपराइट कंडीशन में होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर जैसे पैरासिटिक की बात करें या फिर पॉन्ड्स इकोसिस्टम की बात करें तो पॉन्ड इकोसिस्टम में हमेशा देखें या ओशियन में देखेंगे तो ये इन्वर्टेड होगा, क्योंकि जो एल्गीज होगी, जो फिलामेंटस एल्गीज हैं, सबमर्ज्ड एल्गीज हैं, फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, अब यहाँ पे स्मॉल फिशेज और जो लार्ज फिशेज की जो संख्या होगी वो ग्रेटर अमाउंट में होगी, ग्रेटेस्ट होगी। तो इसलिए यहाँ पे जो इनका पिरामिड इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा, तो वहाँ पे पाए जाएंगे तो ये हमेशा क्या होंगे, ग्रेजुअल लॉस होता जाएगा और इस प्रकार से ये हमेशा इन्वर्टेड होंगे। हमने जैसा बताया कि क्या होंगे, क्योंकि देखें क्यों इन्वर्टेड होंगे उसका कारण हम बता देते हैं। इसका कारण है कि जैसे मैंने कहा कि जो टॉप कार्निवोरस है, टर्सरी कंज्यूमर है, वो लार्ज फिशेस होती हैं। लार्ज फिशेस हैं तो उनका जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा। फिर स्मॉल फिशेस होंगी, फिर स्मॉल फिशेस के बाद यहाँ पे स्मॉल फिशेस और यहाँ पे फिर जूप्लैंक्टन्स होंगी और यहाँ पे फाइटोप्लैंक्टन्स होंगी या एल्गीज होंगी। अब इनकी जो वेट होगा इन कंपैरिजन करेंगे तो लगातार लेसर होता जाएगा, कंपैरिजन में करेंगे इसके अपेक्षा, इसलिए ये क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड केस दिखाया जाएगा। ठीक है, ये केस हो गया किसमें, पिरामिड्स ऑफ बायोमास के अंतर्गत ये इसका रिप्रेजेंटेशन है।
इसी प्रकार से अगर हम जो है पैरासिटिक में दिखाएंगे तो पैरासिटिक में भी पिरामिड्स ऑफ बायोमास जो है इन्वर्टेड होंगे, क्योंकि वहाँ पे जो पैरासाइट्स होगी उसकी संख्या ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से अब हम तीसरा देखते हैं पिरामिड्स ऑफ एनर्जी को। तो पिरामिड्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत ये रिलेशनशिप यहाँ पे प्रदर्शित हो रहा है कि पिरामिड्स ऑफ एनर्जी के अंतर्गत यहाँ पे हम देखने का प्रयास करेंगे। अभी तक हमने न्यूमेरिकल नंबर देखा, बायोमास वेट के आधार पे देखा, अब यहाँ पे पिरामिड्स ऑफ एनर्जी के रूप में देख रहे हैं। ए फ्लो ऑफ एनर्जी यहाँ पे दिखाया जा रहा है, फ्लो ऑफ एनर्जी। तो फ्लो ऑफ एनर्जी यहाँ पे कैसी है पिरामिड्स ऑफ एनर्जी? तो ऑल टाइप ऑफ all type of the ecosystem in which the flow of energy is the same pattern, same manner, because that is the this is the tendency or the concept is that to the energy always which goes in the upright in condition. तो एनर्जी का जो फ्लो होता है वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे एक सीधी रेखा में एक दिशा में चलता है, तो इसलिए वो हमेशा जो ट्रायंगुलर शेप बनेगा, पिरामिड्स का फॉर्मेशन होगा, वो एक ही दिशा में एक ही कंडीशन में होगा। तो जिसके आधार पे वो हमेशा एक दिशीय होगा, मतलब कि एक ही डायरेक्शन में चलने वाला होगा और एक अपराइट कंडीशन में होगा। वो चाहे ग्रासलैंड हो, पॉन्ड्स हो, पैरासाइट्स हो, या फिर जो है ओशियन हो, फॉरेस्ट हो, एनी काइंड्स ऑफ फूड चेन दैट्स फाउंड इन द इकोसिस्टम विच अपराइट इन कंडीशन विच रिगार्ड्स टू द रिगार्ड्स पिरामिड्स ऑफ एनर्जी। पिरामिड्स ऑफ एनर्जी के रेफरेंस में हमेशा जो ट्रायंगुलर शेप बनेगा वो हमेशा अपराइट कंडीशन का बनेगा, इस प्रकार से कि किसी भी कैसा भी जो इकोसिस्टम होगा वो हमेशा एनर्जी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर, वहाँ पे एनर्जी हमेशा सीधी रेखा में चलेगा। वो कैसा भी किसी भी प्रकार का जो है इकोसिस्टम हो वो, तो इसलिए यहाँ पे ये अपराइट कंडीशन में होता है हमेशा, इसलिए यहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी इस मैनर में दिखती है। तो इस हिसाब से हम ये देख सकते हैं कि ये ट्रॉपिक लेवल के अंतर्गत जो इकोलॉजिकल पिरामिड्स बनते हैं उनका अलग अलग रिलेशन है। और ये पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हमारे जो थ्योरेटिकल एग्ज़ाम के साथ साथ जो है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इसी को बार बार पूछा जाता है कि इन्वर्टेड, अपराइट एंड सिग्मॉइड जो फॉर्म बनते हैं वो किस में कैसा और किस प्रकार का बनेगा। तो अब इसी से रिलेटेड हम बात करते हैं थोड़ा सा, चूँकि मैंने फूड चेन की बात कर रहा हूँ जिसमें टायर्स का फॉर्मेशन हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इसी के साथ साथ में फूड वेब की बात करते हैं कि फूड वेब किस प्रकार से होता है। अब इसके अंतर्गत हमने अभी पिरामिड्स ऑफ नंबर, बायोमास और एनर्जी की बात की जो कि ट्रॉपिक लेवल्स के अंतर्गत आते हैं, जो कि फूड चेन के अंतर्गत आता था। अब हम फूड चेन जो ट्रॉपिक लेवल्स के बाद हम बात करते हैं फूड वेब की। फूड वेब क्या होता है? अब आपको पता होना चाहिए, वेब का मतलब नेटवर्क होता है, जाल होता है, नेटवर्क कह सकते हैं आप। इससे आपको ये समझ में आना चाहिए कि फूड नेटवर्क, अब इसका मतलब ये है, यू आर ऑलरेडी नो दैट वेरी वेल अबाउट टू द व्हाट काइंड्स ऑफ द ecosystem which found in the environment, so that to the all the in the general words, that is the all the ecosystem on the behalf of to the interaction of to the organism which eat to the food in the prey and predators manner and interconnected to each other, means that to the producers, primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, decomposers, which are interconnected to each other, form to the different ecosystem. So different ecosystem when interlocking to each other, जबकि अलग अलग प्रकार के जो
फूड चैन होते हैं इकोसिस्टम में, वो आपस में जुड़ते हैं और एक प्रकार का जाल बनाते हैं। और वो जाल किसके लिए बनता है? भोजन को प्राप्त करने के लिए। मतलब कि एक ऐसा जो खाद्य जाल जो जिसके अंतर्गत एक दूसरे को भोजन के रूप में विभिन्न प्रकार के जो फूड चैन है वो एक पारितंत्र में वहाँ पे ग्रहण किए जा सकते हैं और वो एक नेटवर्क बनाते हो, इंटरलॉकिंग नेटवर्क बनाते हो, तो उसको खाद्य जाल बोला जाता है। A food web which are defined as the interconnection of the organism which related to the different organism which shows that to the predators and the prey relationship, which means that to the each of the organism or the every kinds of the organism which feed by the another one, so that to the these outcome which interacted to each other and formed to the inter network. So interlocking relationship are the different types of the food chain interacted upon each other. Different types of the ecosystem interacted to each other, that is formed to the interlocking system, which means that to the takes to the food material, from that to the every kinds of the organism which found to the डिफरेंट इकोसिस्टम। तो विभिन्न प्रकार के जो इकोसिस्टम्स हैं वहाँ पे पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं वो अलग अलग प्रकार के दूसरे जो फूड चैन होते हैं वो उनके द्वारा भोजन के रूप में ग्रहण किए जा सकते हैं और एक जो है नेटवर्क चैन बनाते हैं जिनको कहा जाता है फूड वेब। तो फूड वेब जो होता है, तो फूड चैन के अंतर्गत आपने देखा कि यहाँ पे इंटरलॉकिंग सिस्टम के अंतर्गत जो है अलग अलग प्रकार के फूड चैन के अंतर्गत जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो एक दूसरे के भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं और जो है एक नेटवर्क बना लेते हैं, तो उसी को फूड वेब बोला जाता है। अब ये इस प्रकार से ये जो है अलग अलग टॉपिक्स में जो आपने जो है टॉपिक लेवल देखा और उसके अंतर्गत हमने फूड वेब और टाइप्स ऑफ द इकोलॉजिकल पिरामिड्स को बताया। इस टॉपिक में इतना ही। अगले टॉपिक में हम इससे इकोसिस्टम से रिलेटेड कुछ नई चीज़ों की बात करेंगे। धन्यवाद।